हम पढ़ेंगे जरमिया 15 चैप्टर 16 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से पहले पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSR बाइबल में से पढ़ेंगे। जरमिया 15 चैप्टर पहले वर्ष से पढ़ेंगे। Introduction. Utter rejection and manifold judgments of the Jews. Jeremiah receives a gracious promise for himself and a threatening for them. थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर हमें वचन सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोल दे और हमारी बुद्धि को खोल दे, और हम परमेश्वर चाहता है उस प्रकार के आज्ञा पालन में उतर कर आ सके। ऐसा महान रीति से सामर्थ्य अभिषेक हम में भर दे, इन वचनों के भेद हम समझ पाए और ग्रहण करें और आज्ञा पालन कर सके। यीशु नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन। First verse. Then said the Lord unto me, though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward this people. Cast them out of my sight and let them go forth. And it shall come to pass, if they say unto thee, whither shall we go forth? Then thou shalt tell them, thus saith the Lord, such as are for death to death, and such as are for the sword and to the sword, and such as are for the famine to the famine, and such as are for the captivity to the captivity. And I will appoint over them 4 kinds, saith the Lord, the sword to slay, and the dogs to tear, and the fowls of the heaven, and the beasts of the earth to devour and destroy. And I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because of Manasseh the son of Hezekiah king of Judah, for that which he did in Jerusalem. For who shall have pity upon thee, O Jerusalem? Or who shall bemoan thee? Or who shall go aside to ask how thou doest? Thou hast forsaken me, saith the Lord. Thou art gone backward, therefore will I stretch out mine hand against thee and destroy thee. I am weary with repenting, and I will fan them with a fan in the gates of the land. I will bereave them of children. I will destroy my people, since they return not from their ways. Their widows are increased to me above the sand of the seas. I have brought upon them against the murder of the young men a spoiler at noonday. I have caused him to fall upon it suddenly, and terrors upon the city. She that hath borne 7 languisheth, she hath given up the ghost, her son is gone down, while it was yet day. She hath been ashamed and confounded, and the residue of them will I deliver to the sword before their enemies, saith the Lord. Woe is me, my mother, that thou hast borne me a man of strife and a man of contention to the whole earth. I have neither lent on usury, nor men have lent to me on usury, yet every one of them doeth curse me. The Lord said, Verily I shall be well with thy remnant. Verily I will cause the enemy to entreat thee. Well, in the time of evil and in the time of affliction shall iron break the northern iron, and the steel. Thy substance and thy treasures will I give to the spoil without price, and that for all thy sins, even in all thy borders. And I will make thee to pass with thine enemies into a land which thou knowest not. For a fire is kindled in mine anger, which shall burn upon you.
O Lord, thou knowest, remember me and visit me, and revenge me of my persecutors. Take me not away in thy long suffering. Know that for thy sake I have suffered rebuke. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name. O Lord God of hosts, I sat not in the assembly of the mockers, nor rejected I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as waters that fail? Therefore, thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me. And if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not thou unto them. And I will make thee unto this people a fenced brazen wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee to save thee and to deliver thee, saith the Lord. And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible. Chapter 16. Introduction. By two types, the utter ruin of the Jews is foreshown their return from captivity stranger than their deliverance out of Egypt. First verse से पढ़ेंगे. The word of the Lord came also unto me, saying, Thou shalt not take thee a wife, neither shalt thou have sons or daughters in this place. For thus saith the Lord concerning the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their mothers that bear them, and concerning their fathers that begat them in this land. They shall die of grievous deaths. They shall not be lamented, neither shall they be buried, but they shall be as dung upon the face of the earth, and they shall be consumed by the sword and by famine, and their carcasses shall be meat for the fowls of heaven and for the beasts of the earth. For thus saith the Lord, Enter not into the house of mourning, neither go to lament, nor bemoan them, for I have taken away my peace from this people, saith the Lord, even loving kindness and mercies. Both the great and the small shall die in this land. They shall not be buried, neither shall men lament for them, nor cut themselves, nor make themselves bald for them. Neither shall men tear themselves for them in mourning to comfort them for the dead. Neither shall men give them the cup of consolation to drink for their father or for their mother. Thou shalt not also go into the house of feasting to sit with them to eat and to drink. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will cause to cease out of this place in your eyes and in your days the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride. And it shall come to pass, when thou shalt shew this people all these words, and they shall say unto thee, Wherefore hath the Lord pronounced all this great evil against us? Or what is our iniquity?
Or what is our sin that we have committed against the Lord our God? Then shalt thou say unto them, Because your fathers have forsaken me, saith the Lord, and have walked after other gods, and have served them, and have worshipped them, and have forsaken me, and have not kept my law. And ye have done worse than your fathers, for behold, ye walk every one after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me. Therefore will I cast you out of this land into a land that ye know not, neither ye know nor your fathers. There shall ye serve other gods day and night, where I will not shew you favor. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be said, The Lord liveth, but that brought up the children of Israel out of the land of Egypt. But the Lord liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them, and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers. Behold, I will send for many fishers, saith the Lord, and they shall fish them. And after will I send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain, and from every hill, and out of the holes of the rock. For mine eyes are upon all their ways, they are not hid from my face, neither is their iniquity hid from mine eyes. And first I will recompense their iniquity and their sin double, because they have defiled my land, they have filled mine inheritance with the carcasses of their detestable and abominable things. O Lord, my strength and my fortress and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit. Shall a man make gods unto himself, and they are no gods? Therefore, behold, I will this once cause them to know, I will cause them to know my hand and my might, and they shall know that my name is the Lord. हम हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 15 अध्याय और 16 अध्याय। यिर्मयाह 15 अध्याय 16 अध्याय। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहूदा के लोगों का पूर्ण त्याग। पहले वचन से, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। यदि वे तुझे से पूछे हम कहाँ निकल जाए, तो कहना, यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले हैं तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनाने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूँगा कि वे पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर
हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूँगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फाटक दिया है। उन्होंने मार्ग को नहीं छोड़ा। इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र के बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर ही की को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही की अस्त हो गया। उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। देखिए, आप एक बात की ओर गौर कीजिए, क्या लिखा है। 7 लड़कों की माता भी बहुत हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया। उसका सूर्य, ठीक है, उसका सूर्य यानी यरूशलेम को एक सूरज दिया गया है, वो सूरज जल्दी अस्त हो गया। अगर ये सारा चीज़ आप देखेंगे तो एक शहर की कहानी बता रहा है परमेश्वर। ओके, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा समय लगाएंगे पढ़ने में तो आपको एक एक बात पवित्र आत्मा इसको खोल कर बताएगा। वही के अंदर से रेमा वचन निकलते हैं। फिर इसके लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ता है कि पवित्र आत्मा को मांगे कि ये क्या है परमेश्वर, ये कैसे, क्या एक शहर के लिए एक अलग सूरज, कभी सुना था क्या आपने? ओके, आप अचंभित हो जाते, क्या कह रहा है तू, दोपहर क्यों लुटेरे, क्या कारण है दोपहर ही पकड़ा तूने लुटेरों को भेजने का? ओके, इस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ बैठ के इन बातों का पूरा जो भी मतलब है आप उसको पूछ के ले सकते हैं। उसी को बोलते हैं रेमा वचन, और उसी में से विश्वास की मजबूती होती है, उसी में से चमत्कार हो जाते हैं, उसी में से उन्नतियाँ आती है। सब कुछ उसके अंदर से ही पैदा होता है। तो फिर आप वही लेना नहीं चाहेंगे तो आप कैसे क्या परमेश्वर के आत्मा की बातों में उन्नति कर पाएंगे? हालेलुया। तो इसको समय दे के परमेश्वर से मांगना है ऐसे वचनों को। ओके, यिर्मयाह का विलाप 10 वचन से आगे। पिता परमेश्वर हमको ये वचनों के ज्ञान दे, हम समझ नहीं पा रहे इसके बारे में ये क्या तरीका है इस तरह से लिखने का। पिता परमेश्वर हमारी मन को आनंदित कर, तेरे रहस्य भेद हमें समझा कर हमें आनंदित कर, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। यिर्मयाह का विलाप 10 वचन से आगे। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपये दिए और न किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊँगा। क्या कोई पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, है ना, कि ऐसा लोहा, उत्तर दिशा का लोहा, हाँ, पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा, यह स्पेशलिटी है। उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है, तो इसका मतलब उत्तर दिशा का लोहा कौन है? क्या कारण है कि वो तोड़ा नहीं जा सकता है? क्वेश्चन करना है हमने परमेश्वर के आत्मा से, और इसके भेद को हमने लेना है अपने लाइफ के लिए। तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिन दाम दिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सूधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले।
तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की को क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूँगा। ये जो 19 वर्स से लेकर मैंने पढ़ा है ना, ये वचनों को हमने अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बोलना है। हाँ, इसका रीज़न है एक जगह में, देखो इसका एक रीज़न है क्यों बोलना है। यहाँ पे क्या दिया है, अगर तू मन फिराएगा तो ठीक है। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप मन फिराने का ही काम करते हैं, है ना। आपके मन को आप निकाल के लाते हैं बाहर सब बातों में से, और लगा देते हैं कि तू कहे परमेश्वर और मैं उसे सुनने को तैयार हूँ, है ना। तो अब परमेश्वर बोल रहे, अब मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। हाँ, अब तेरे लिए कुछ बातें हैं मेरे पास, तो आपने इन बातों को अपने लाइफ के ऊपर बोलकर मजबूत करना है। हालेलुया। यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा 16 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। देखिए, ये होता है इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं। ओके, ये सूचना है। अब जब हम पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, तो अगर हमको ऐसा सूचना नहीं मिला तो हम विपत्ति का सामना तो कर रहे हैं, हमको छुड़ाने के लिए कोई सहायता नहीं कर रहा है, उल्टा हमारे ऊपर दबाव ही ज़्यादा आता जा रहा है। तो परमेश्वर ने यह इंस्ट्रक्शन में इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया, तो हम परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हमारा अगला समय इंस्ट्रक्शंस देकर चला। हम ये विपत्ति से छूटना चाहते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देके चला, हम इन बातों से अलग होना चाहते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस में से चला। समझ में आया? यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों की रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। ये बात एक ज़रूरी है, मैं इसे अपने लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है मरने के बाद लोग खाना क्यों खिलाते हैं। ओके, 10 दिन के बाद, अब मसीह लोगों के बारे में पूछेंगे तो वो 40 दिनों के बाद खाना खिलाते हैं। तो 40 दिन तो यीशु मसीह ने उपवास किया था और फिर रोटी खाई थी। तो यीशु मसीह तो सामर्थ्य भरने के लिए उपवास किया था, उसने ऐसा थोड़ी उपवास किया था कि वो शोक करे। लेकिन पुराने नियम में दाऊद ने भी शोक किया, फिर रोटी खाई।
तो शोक करने का समय देना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये शोक करने के बाद हम रोटी खाते हैं, तो सबको बुलाते हैं रोटी खाने के लिए, जो मर जाते हैं उसके बाद फिर हम कुछ दिनों के बाद रोटी खाने के लिए बुलाते, खाना खाने के लिए बुलाते। मैं इसे समझ नहीं पाती हूँ ये क्यों ऐसा है। पवित्र आत्मा ऐसा मुझे समझाना चाहिए कि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हमारे हाथों में उसकी डेड बॉडी नहीं आई, और वैसे ही पापा हमारे लापता हो गए, फिर मिले नहीं हमारे हाथों में वो, तो वो दोनों की डेड बॉडीज़ डिक्लेयर नहीं हुई कि वो डेड है। ओके और जब हम 7 साल हो गए तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि वो डेड हो चुके हैं, ये तो सर्टिफिकेट देते हैं फिर। लेकिन हम अगर देखेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, तो हमने कभी ऐसा समय आया ही नहीं कि हमने उनके बारे में शोक किया और उनके बारे में खाना खिलाया। तो मेरे अंदर से ये बात मालूम ही नहीं पड़ रहा है मुझे कि क्या मैंने उनके बारे में शोक करना है और उनके बारे में खाना खिलाना है या नहीं। ओके क्या मसीह जीवन का ये रिवाज है कि हमने ऐसा करना है? ये तो ठीक है। अब पतरस पौलुस के वचनों में भी हम पढ़ते हैं कि स्तिफनोस के लिए उन्होंने शोक किया। हाँ फिर शोक करना ठीक है, तो शोक करने के बाद खाना खिलाना, लोगों को बुलाना, ये क्या है? इसके बारे में क्या है? तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो मुझे ऐसा लगता है कोई वाचा है जो टूटता है खाना खिलाने से। मरे हुए लोगों के साथ का वाचा टूट जाता है हमारे साथ का संगति में, ये हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ओके लेकिन यहाँ पे भी दिया है, देखो वचन दिया है कि क्या किया है, बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। हाँ शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। अब ये शांति पहुँचती है क्या मरे हुए लोगों को? या रोटी खाने से शांति आती है, ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट नो। और ये तो मेरी बहुत बड़ी एक तमन्ना है कि मैं इसे समझूं, ये क्या क्या तरीका है, रिवाज है, हमको सीखने की ज़रूरत है। अगर ये मसीहों को मानने की ज़रूरत है तो हमने मानना है, अगर नहीं है तो डिक्लेयर करना है, खुलकर प्रचार में लेकर आना है, क्या हमने इसको पालन करना है या नहीं करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे, तो भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूँ कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे और न दुल्हन का शब्द। जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूँगा। हालेलुया। देखो बंधुआई से छूटने का, मुश्किलों से छूटने का सीक्रेट क्या है? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहिए। आमीन। देखो जब पौलुस ने कहा था कि मुझ में से ये कांटा दूर कर, ओके, तो परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो हर एक हमारी समस्या का आंसर क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, बंधुआई से वापसी। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों
को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध। वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध। क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैं उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। आने वाला दंड। 16 वचन से आगे देखो, यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका आहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों के दरारों में से निकाले। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। यिर्मयाह की प्रार्थना है, यहोवा हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान। जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। ये वचन को भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रार्थना के शब्दों में, ठीक है। 21 वचन को 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, बहुत बातें हैं जो हम समझ नहीं पाए हैं इस वचन के अंदर, लेकिन हम पढ़ तो लिए हैं खुदा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि हमारी समझ को तो इसकी खुराक ज़रूर देगा, इसके विषय में ज़रूर निश्चित तो हमारे मन को आनंदित करेगा। इस भेद को समझाकर हमारी उन्नति में तो कभी भी कसर नहीं रखेगा। हम पूरे विश्वास के साथ तुझ पर निर्भर है कि ये वचन क्या है हमको समझाए इस अध्याय के जो आज हमने पढ़ा। नासरी यीशु के नाम में हम अपने आप को तुझे सौंप देते हैं पवित्र आत्मा, और जितना तूने दिया उन सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के अनुसार हमें जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी रचना में हमको लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान क्या है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 7 chapter 20 verse से 31 verse, 2 Kings 11 chapter 12 chapter, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 20 वचन से 31 वचन, दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय और 12 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। जब हम अपने व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ेंगे तो हम जो परमेश्वर चाहता है उस प्रकार का पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर ये हमको एक रास्ता दिया है कि हम उसको उठा लेना है। जब ऐसा करते हुए हम 2 साल के अंत में देखेंगे प्रभु यीशु जिस तरह से हमको चाहता है, जिस रूप में हमको ढलना चाहता है, वो पवित्र वचनों के रूप में हम ढले हुए प्राप्त हो जाएंगे और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसा होने के लिए पवित्र आत्मा हम में निवास कर रहा है। निश्चित हमने परमेश्वर के सच्चाई के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।